Very good evening to all of you students. We have already started with the solution. We have done the first part, that is the concentration. Okay, right? We have done all the concentration we have done. Then we have done lowering of vapor pressure, colligative property. Directly, we started with colligative property. Then we have done this lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure for normal. That was normal. Who all are normal? Urea, glucose, sucrose, which neither dissociate nor associate. Then beta, we did all this property with what? Electrolyte, when it dissociate and when it associates. Right, beta? Okay. And then whenever it associate and dissociate, then we study which factor comes into picture. I factor, went off I factor. Acha. Today we have to do beta the first part, that is the not the first part, basically it is the second part, wherein we are going to study what all thing I will study beta. We are going to study Raoult's law. Then we are going to study ideal solution. Then we are going to study non-ideal solution. Okay, and the numericals. So with this, we'll be completing the chapter. Okay, be very alert for this particular part. Okay, now suppose beta, if I take on water, ऐसे मैंने यहाँ पे लिया water, तो इसमें अगर ये ढक्कन ओपन रखेगा तो क्या होगा बोलो बेटा? Evaporation. But if I close it, then what will happen beta? Evaporation will happen and condensation. At one stage, what will happen? The rate of evaporation is equal to rate of condensation. So at that given point, suppose there are 5 vapors, so this 5 vapor will remain 5 only. एक ऊपर जाएगा तो एक क्या होगा? नीचे आएगा. अब ये वेपर है तो वेपर है, गैस है, सो इट विल एक्सर्ट प्रेशर. उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. वी विल कॉल इट एज व्हिच प्रेशर? So vapor pressure of liquid, whichever liquid I have taken. Okay, vapor pressure of liquid. Now, suppose beta, I have two containers. In this, I have taken, this liquid 1, and then here it is liquid 2. Now, there are two types of liquid. One is volatile and one is non-volatile. If I say both are volatile, volatile का मतलब क्या होता है? बताओ, what is the meaning of volatile? Yeah, evaporate. So both of them will form vapors. Okay, right? Now, suppose beta, this room is there. ये room में पहले है ना, मैं ही था सिर्फ. Pure form. I was only pure liquid. So the total pressure of the room will be what? My pressure. अभी शोभित भी अंदर आ गया. मैं एक लिक्विड है, शोभित इज ऑल्सो वन लिक्विड. मेरे भी वेपर्स बन रहे हैं, इसके भी वेपर्स बन रहे हैं. तो पूरे टोटल रूम का प्रेशर क्या होगा बोलो? वेपर प्रेशर विल बी व्हाट? माय वेपर प्रेशर एंड हिज. बट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय वेपर प्रेशर? What is his contribution? That we call it as what? Partial vapor pressure. We call it as partial vapor pressure. मतलब हम लोग दोनों रूम में थे तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? तो पार्शियल वेपर प्रेशर. शोभित का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर. So look, when I was there, I would have formed some vapors or not? Tell me beta. When Shobhit was there, he will also form some vapors. This was when I was first alone in the room and then Shobhit was alone in the room. When we are alone, then our vapor pressure, we call it as what beta? Pure form. Vapor pressure in which form? Pure form. Here also his vapor pressure will be in which form? Pure form. Why pure form? Because he was alone. Now both of us we are mixing these two. We are mixing these two. So now what will happen in the room? Tell me. Both the solution we have mixed. So here vapors of both of us will be there or not? Tell me. Hello. Now in this, what is my dilemma? I want to find whose contribution is how much. So total pressure will be how much? So how much is my contribution here? My contribution, if I want to find. Okay, so my pressure will be how much? Partial pressure of me is what? Pure pressure of mine when I was alone in the room into my mole fraction. What will be his contribution? Tell me. So PB of Shobhit will be what? When Shobhit was alone in the room into his mole fraction. And this is known as what beta? Raoult's law. And what is the total pressure of this entire room? PA plus PB. Understood? Where both of us are what? Volatile. Both of us are volatile.
This is clear. Okay. Chalo beta, look. Vapor pressure, blah, blah, blah. We are going to study Raoult's law. Okay. Chalo. Pure liquid is taken beta. So in entire thing will form vapor, and this vapor will give us what? Vapor pressure. So vapor pressure of a only liquid is the pressure exerted by the vapors when it is in equilibrium, evaporation. What are the factors which will affect the vapor pressure? As I told you, nature of the liquid. A liquid are of two type. कोई highly volatile है, कोई less volatile है. जो ज्यादा volatile है वो जल्दी से vapors बनाएगा. Secondly, it also depend upon what? Temperature. If I increase the temperature, vapor pressure increase. More vapors will be formed, na beta. Now, Raoult's law we are going to do. Which law? For which liquid both of us are volatile. Both of us are volatile. तो इसके साथ में आने का ना बेटा. You are both together ना in the class before this. अच्छा तू तेरे घर पे गया था? अच्छा मैं ही आ गया था. इनको लगा कि वो हम लोग साथ में छूटे थे ना इसके लिए. Okay, in a solution, tell me beta, vapor pressure of a component at a given temperature. अच्छा, throughout this process, temperature was constant. Is equal to the mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure of that component in which state? Pure. मतलब अगर मेरा वेपर प्रेशर ढूंढने का है तो पहले मैं रूम में, पहला कोई नहीं था, पहले रूम में मैं अगर अकेला होता तो मेरा क्या होता प्रेशर? ये प्योर स्टेट. दिस इज व्हाट बेटा? प्योर. बट एंड दिस मोल फ्रैक्शन, व्हेन दिस मोल फ्रैक्शन विल कम इनटू पिक्चर? आफ्टर मिक्सिंग. क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए दो जन होना चाहिए ना, मिनिमम दो या मोर. क्लियर बेटा? सो दिस इज विच लॉ? राउल्स लॉ. चलो बेटा, ठीक है. तो देख बेटा, ये देखिए हम लोग ने यहाँ पे सब बता दिया. ये मैं हूँ, ये शोभित है, दोनों को मिक्स किया हम लोग ने. बराबर है बेटा? सो वी विल गेट दिस और नॉट? टेल मी. So now I'll show. Sorry. Where is our notes? अच्छा बेटा, I think by Saturday I'm trying. But if not Saturday, then next Thursday you'll get the printed notes wherein all the NCERT questions, exemplar question with answer, MCQ, assertion reasoning, all those will be there. Huh? I'll be giving 2 booklets to you, printed one. Okay. But I'll always give this also. This is in a very simplified manner. Okay. And that other notes I'll be giving you, that will be colorful. Huh? Chalo. So Raoult's law we have done, beta. Hello. Okay. One means any component is equal to what? Pure form into its mole fraction. Now we are going to derive Raoult's law for what? Volatile in volatile. Both are volatile. I am also volatile. He is also volatile. Achha, in the entire chapter, beta, whenever I'll take solvent, we know what notation we are going to use it for solvent 1. Huh? And for solute, we are going to use 2. Please, बच्चे लोग जनरली सल्यूट को 1 ले लेते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है ना? So when it is in, so this is vapor pressure of what beta? Whenever I say beta, P1 means what? Solvent. Partial vapor pressure. Total will be, I'll add both or not, tell me. So I've added both. Now what? Substitute the values. Substitute the. Anvi beta, are you going to come or you are going to attend online only today? Online only? Online only. Okay beta, not a problem. But you have notes in front of you, no beta, right? Yes, sir. Okay, I have given all the notation for to make your job simple, beta. Look, partial vapor pressure of solvent, P2. This is, but ऊपर 0 होगा ना बेटा, वो क्या होगा बेटा? प्योर होगा बेटा. Clear है? 1 means what? Solvent. 2 means what? Solute. So I am adding both. अच्छा बेटा, we have studied ना, mole fraction of solute plus solvent is always 1 or not? Tell me. पढ़ा था ना, बताया भी था ना सम तुझे बेटा, right? That is why I taught you that part. Now what is this? 2 means what beta? 2 is what? Your solute, na beta? Right? So now I'm going to write this in terms of what beta? Solvent. So can I write x2 as 1 minus x1? So I've substituted here 1 minus x1. Are you getting it beta? Clear? Open the bracket. This will become p and this will multiply by this. Now can you see where x1 can you see beta? These two terms you can see here or not? So I have written this here and then this here. और ये पॉजिटिव है ना, इसको आगे लिख दिया. चलेगा? दोनों में कौन कॉमन है बोलो? x1. हाँ, अब बेटा ना एमसीक्यू में सम आएगा बेटा इस पे, मतलब एग्जाम में भी आ सकता है. पी टोटल इज व्हाट बेटा? 2 मींस व्हाट बेटा? एज आई टोल्ड यू, 2 मींस व्हाट? ए सल्यूट. सल्यूट बोला के सॉल्वेंट बोला? तू सॉल्वेंट बोला. टू क्या है? 2 लिखा मतलब क्या है? सल्यूट. दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सल्यूट. 1 मींस सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अभी लिखा था ना यहाँ पे टर्म्स. आर यू गेटिंग इट और नॉट? So with this, we are going to solve numericals based on it. This is for which one? If both are volatile.
कभी कभी ना ऐसा इक्वेशन दे देंगे आपको पी एंड दे हियर दे विल गिव सम वैल्यूज हाँ हियर आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ सम दे विल आस्क नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द ग्राफ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटा ये ग्राफ क्या है बहुत इजी है बेटा अच्छा यहाँ पे वो लोग ने वो बी देख अभी यहाँ पे वो लोग ने ए बी लिया है चलेगा ना बेटा two different solvent we have taken beta right so here it was what can you see beta this a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 minus xb are you getting it I have written in terms of solvent clear so we'll get this and this is our p total p अच्छा now I want to explain you this graph ये ग्राफ आपको कुछ समझा क्या नहीं बहुत इजी एकदम इजी है ओके ए काय रे येडा झोपतोस काय किती झोपणार मेल्या काट्या ओके अच्छा ये सुनो सुनो बेटा इट इज वेरी सिंपल बेटा ए लिसन ना दिस इज वेरी सिंपल यहाँ पे पहले बेटा कौन था रूम में अकेला था कौन था ओनली ए वॉज हियर हियर हु वॉज देयर ए ये ग्राफ है बुक में भी है मैं सब बताऊँ और यहाँ पे कौन है बोलो बेटा बी पहला केस में बता था पहला केस अभी ये रूम है पहले रूम में कुछ कुछ नहीं था अभी धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कौन था बोलो बेटा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सिर्फ ए अगर रहता ओनली ए इज देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हाउ मच रूम में अगर एक ही बंदा है तो इट विल बी वन ओनली तो यहाँ पे बी होगा क्या नहीं ना बेटा बी नहीं है बी जीरो हो गया ना बेटा मैं और दो ये दोनों था अभी मैं रूम में मैं ही हूँ ये है ही नहीं तो रूम का भी टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होगा मेरा जो मोल होगा वही होगा ना बेटा अच्छा और रूम का टोटल प्रेशर भी कितना होगा जो मेरा होगा वो सो माई दिस इज माई एक वैल्यू में ले लेता चलो ये मेरा प्रेशर है अब धीरे धीरे रूम में कौन आ रहा है शोभित आ रहा है जैसे जैसे शोभित पहला थोड़ा आएगा तो जैसे जैसे शोभित आते जाएगा तो मेरा मोल फ्रैक्शन क्या होते जाएगा कम 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 शोभित का क्या होते जाएगा बढ़ेगा कि नहीं आर यू गेटिंग इट ओके अच्छा अभी देख जैसे जैसे शोभित एंटर करेगा तो मेरा मेरा कंपोनेंट क्या होते जाएगा कम कम इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग आर यू गेटिंग इट डियर हेलो माय प्रेशर माय कंपोनेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग ना राइट बेटा आई एम गोइंग ऑन डिक्रीजिंग 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 यहाँ पे आ जाओगा तो मैं कितना हो जाऊंगा बोलो हाँ वेरी गुड आई विल बिकम जीरो और अब क्या हो जाएगा मैं पूरा गायब हो गया तो अब सिर्फ रूम में कौन रहेगा शोभित तो शोभित का ये यहाँ पे ये पूरा शोभित है अलोन ऑल अलोन कॉमन सेंस है ना, अभी दो जन मिक्स हो रहा है तो एक का पहले एक जन था तो दूसरा आएगा तो धीरे धीरे कम होते जाएगा कि नहीं तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैंने ले लिया लेट अस इमेजिन शोभित इज मोर वोलेटाइल तो उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा होगा कि नहीं अभी दो लिक्विड है एक जन ज्यादा वोलेटाइल भी हो सकता है कि नहीं ओके अच्छा अभी उल्टा करते हैं रूम में सिर्फ शोभित था मैं था क्या तो रूम का पूरा जो प्रेशर होगा वो शोभित का प्रेशर होगा लेकिन अभी धीरे धीरे अगर मैं अंदर आते जाऊंगा तो शोभित का प्रेशर क्या होते जाएगा बोलो बेटा इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग राइट अब इतना समझा अच्छा ये मिड में जो भी आ रहा है बीच में अगर मुझे दोनों का बीच में का ढूंढने का है बीच में हम लोग कितना है दोनों जन व्हेन वी इन द इंटरमीडिएट स्टेट मतलब मेरा मोल फ्रैक्शन सपोज आगे यहाँ पे मैं लिख देता सपोज मेरा वैल्यू कितना था 0.8 तो शोभित का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बोलो बेटा 0.2 होगा ना आर यू गेटिंग इट right ना बेटा then I'm decreasing can you see I'm decreasing 0.6 0.4 0.2 then I'm becoming 0 तो शोभित कितना होगा बेटा जब यहाँ पे 0.8 अभी पहला शोभित ने जस्ट एंटर किया मेरा कम होगा तो शोभित का बढ़ेगा राइट तो हम लोग को अगर दोनों का जब बीच में ढूंढने का है व्हेन बोथ ऑफ अस आर मिक्स्ड तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बोलो बेटा व्हेन बोथ ऑफ अस आर मिक्स्ड देन व्हाट आई विल गेट दिस वैल्यूज अच्छा हम दोनों अभी रूम का प्रेशर क्या होगा मेरा अकेले का होगा क्या नहीं इसका होगा क्या नहीं सो वी विल यूज व्हाट बेटा पी टोटल वी विल यूज व्हाट पी टोटल एंड पी टोटल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे पी ए प्लस पी बी हैव यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ नाउ हेलो ओके
अच्छा, दिस ग्राफ विच वी हैव डन इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है बोलो? मैं हूं शोभित, हम लोग दोनों मिक्स किया, हम दोनों तो एक दूसरे से पहले हम लोग दोनों को मिक्स किया, तो वी शुड बी मिसिबल। मिसिबल हम लोग दोनों में मिक्स होना चाहिए, और हम दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सॉल्वेंट हूं, मेरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होगा, many molecules of mine. So in my molecules, there should be whatever force of attraction is there. After mixing, also same force should be there. Whatever force of attraction were there in the Shobhitka molecules, same force of attraction should be there after mixing also. So before mixing and after mixing, no new forces will be developed. Are you getting it? Such a solution is known as which solution? Ideal solution. Which solution? And Raoult's law is applicable for which solution? Acha. If I'm taking 50 ml of me and 50 ml of Shobhit, so after mixing, it should be what? Exactly 100 ml. No new bond are formed. So change in volume will be zero ना बेटा, 50 पर 50 मतलब कितना होगा? 100 ही बनेगा. No original forces of attraction are broken down. If original forces will be broken down, then I have to supply energy. So reaction will be what? Endothermic. तो ऐसा कुछ होगा कि आइडियल सोल्यूशन में कुछ एंडोथर्मिक नहीं होगा. नो न्यू बॉन्ड शुड, आफ्टर मिक्सिंग मेरे और इसके बीच में नया बॉन्ड नहीं बनना चाहिए. बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे ना एक्सोथर्मिक होगा. तो आइडियल सोल्यूशन में क्या है? डेल्टा एच इज जीरो, डेल्टा वी इज ऑल्सो जीरो, नो न्यू फोर्सेज आर फॉर्म, नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नो ओरिजिनल बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन. दैट इज विच सोल्यूशन. हैव यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ? ये ग्राफ बच्चों को जल्दी से समझता नहीं, लेकिन आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल से अच्छे से दिमाग में गया. अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग दोनों कौन थे? आइडियल. लेकिन लाइफ में कोई आइडियल होता नहीं. ओके, अभी सुनो बेटा, ये समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया बेटा? परफेक्टली क्लियर. अब देखो बेटा, हम दोनों को जब हम लोग मैं जब ओरिजिनली था तो मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, एंड आफ्टर मिक्सिंग विद हिम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वन एंड द सेम. बट समटाइम्स व्हाट मे हैपन व्हेन आई एम, इफ वी आर नॉट आइडियल, इफ वी आर, सपोज मैं वाटर हूं, मैं वाटर हूं, ठीक है ना बेटा? ही इज अल्कोहल, ही इज अल्कोहल. तो वाटर में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट? अल्कोहल में भी बॉन्ड होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. अब हम मिक्स कर देंगे तो मेरे ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, देन आई फाउंड बॉन्ड विथ हिम ना बेटा. तो यहाँ पे क्या हो रहा था? मैं ओरिजिनल बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन डाउन, तो क्या होगा? सम एनर्जी आई हैव टू सप्लाई, सो इट विल बिकम एंडोथर्म. मतलब क्या, एकदम सिंपल है. देखिए, आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है? तुम लो बेटा, बिफोर मिक्सिंग मेरे में जो फोर्स था, इसके अंदर जो फोर्स था, वो भी सेम. आफ्टर मिक्सिंग ऑल्सो इट विल रिमेन सेम. नॉन आइडियल में दो चीजों, बिफोर मिक्सिंग मेरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? ज्यादा. और आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया. या तो बिफोर मिक्सिंग मेरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, एंड आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो दो चीजें हो. अच्छा, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा. सपोज मैं 50 है, ये भी 50, मिक्स करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए था? 100 ना, बट मुझे 100.2 आएगा. कितना आएगा? तो वॉल्यूम बढ़ गया. आप सोचोगे वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम कब बढ़ेगा बेटा? व्हेन इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, बट आफ्टर मिक्सिंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग, सो वॉल्यूम इज, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव डिविएशन. क्या कहेंगे? कभी कभी ये 50 है, मैं 50 हूं, मिक्स करने के बाद कितना आएगा? 100 आना चाहिए था ना. आई मे गेट आंसर हाउ मच? 99.8. सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग ना बेटा, राइट? सो व्हेन वॉल्यूम कैन डिक्रीज? बिफोर मिक्सिंग my force of attraction was what? Weak. And after mixing, it is becoming strong. So volume will shrink. And that is known as negative deviation. That is known as, दिमाग में क्या है? खाली आपको एग्जाम्पल बाय हार्ट रखना पड़ेगा बेटा. आइडियल का आता है हाँ बोर्ड में बहुत बार. नॉन आइडियल का, नॉन आइडियल में भी विच आर पॉजिटिव डिविएशन, विच आर नेगेटिव डिविएशन. आर यू गेटिंग इट डियर? अच्छा, वो क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा बेटा, ठीक है ना? फिट एकदम बच्चा अच्छे से, ये तो बेटा सब हो गया बेटा ये. ओके, तो ये पूरा मैंने ये देखो डेरिवेशन आपको बता दिया बेटा, ये पूरा ग्राफ ग्राफ सब बन गया. अब बेटा ना इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछते बेटा, फाइंड ए वेपर फेज में, सब में पूछा रहेगा, फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. तो वाई इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब मेरा मोल फ्रैक्शन. वाई बी इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ शोभित. ओके, so it will be
पीए अपॉन पीए प्लस वी दोनों को ऊपर, ये आंसर आ आपका वेपर फेज में। क्लियर है? So in general, for a solution containing number of volatile liquid, okay, so what is your partial pressure, mole fraction of that into P total, okay? Now we go to the, हम लोग ने volatile volatile कर लिया, अभी हम लोग को किसका करने का है बोलो बेटा? नॉन वोलेटाइल। तो देखो यहाँ पे मैंने ये डेरिवेशन दे दिया है बेटा, ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? Okay, now we have to do Raoult's law for one of them will be what? And one will be, and who is non-volatile? Solute is non-volatile. Solute is, तो चलो बेटा अभी मैंने आगे दो जन को मिक्स किया है, ये सल्यूट है बेटा। तो सल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर आएगा क्या बेटा? नहीं आएगा ना। सल्यूट को हम लोग क्या लेते थे बोलो बेटा? 2 लेते थे। तो P02 कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, सॉल्वेंट तुम्हारा कौन है बोलो बेटा? हाँ, वोलेटाइल है ना बेटा। तो P1 विल बी नॉन जीरो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। तो अभी बेटा, अच्छा, इफ आई टेकन नॉन वोलेटाइल सल्यूट तो आप किसका वैल्यू 0 डालोगे? किसका? अरे सल्यूट इज व्हाट? 2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या डालेगी बेटा? 0। आर यू गेटिंग? दिस विल बी ऑल्सो, तो व्हाट विल गेट बेटा? तो पी टोटल विल बी व्हाट ओनली, बोलो बेटा, ये 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या है बेटा? 1 क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, इंटू P1। क्लियर? व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड वेपर प्रेशर डिक्रीज। और कॉमन सेंस है, वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा? इतना तो कॉमन सेंस है। पहले हम लोग दोनों वोलेटाइल वोलेटाइल, मैं अभी वोलेटाइल हूं, लेकिन आपने नॉन वोलेटाइल डाल दिया, तो अभी मैं आसानी से वेपर बना पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स आएंगे ना मेरे सिर पे। उसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट वी हैव डन, रिमेंबर? Okay, and this from this we define what? Lowering of vapor pressure. I'll tell you what is lowering of vapor pressure बेटा, look here। फिर से एक बार बता देता हूं, मैं सिर्फ कौन था? सॉल्वेंट है, तो मेरा पूरा वेपर्स बनेगा ना यहाँ पे 5। ये वेपर प्रेशर बन गया। कितने मॉलिक्यूल्स है? 4। अभी आपने अंदर क्या डाला? शुगर डाला। क्या डाला? इज शुगर वोलेटाइल? हाँ, सो व्हाट विल हैपन हियर? नाउ ऑन द सरफेस, apart from water, which all particles will be there? Come on, sugar particle will also come here or not? Tell me. So now I'll form less vapor, na beta? This was pure water. This was only water. Now here it is what beta? Sugar solution. Right na? So when it is sugar solution, so what will happen? Vapors will be more or less? Less. So now this is become vapor pressure of solution. This was vapor pressure of pure component. So when you add solute, vapor pressure decreases. When we did numericals, I gave you a hint. Whenever two values of vapor pressure are given, the higher one will be always of pure component, lower one will be of solution. Pressure कम हो गया कि नहीं? अगर और मैं शुगर डालता तो और कम हो जाता था कि नहीं? So this property depends upon number of solute particle. Therefore, lowering of vapor pressure is which property? Colligative property. Clear? एकदम फिट दिमाग में? चलो, तो बेटा वो हम लोग डेरिवेशन करते थे ना, इससे भी आ सकता था। चलो बेटा, यहाँ पे पी टोटल कितना मिला बोलो बेटा? P1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? 1 मींस व्हाट? सॉल्वेंट। 1 मींस व्हाट? सपोज बेटा इफ आई वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सॉल्यूट, तो x1 के जगह पे तुम लोग क्या लिख सकते हो? 1 माइनस x2 लिख सकते हो कि नहीं बोलो? मैंने 1 माइनस x2 ओपन द ब्रैकेट, इफ आई ओपन द ब्रैकेट, अभी मैंने इसको एक तरफ रखा, ये माइनस को यहाँ पे लेके गया, यहाँ को यहाँ पे लाया, तो P10 0 माइनस PT। PT मींस व्हाट? टोटल सोल्यूशन का है बेटा। सो व्हाट आई विल गेट? टेल मी बेटा। x2 को एक तरफ रखा, याद आ रहा ये क्या था बेटा? अरे भूल गए क्या बेटा? P0 माइनस PS इज lowering with respect to original, and this we call it as what? Low relative lowering of vapor pressure, and this is equal to what? Mole fraction of solvent। अच्छा, इसको फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग कैसे लिखते थे? याद आ रहा है? n सॉल्वेंट अपॉन, रिमेंबर बेटा, n ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बट फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन सोल्यूट क्या हो जाता था? अरे, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे ना बेटा? क्लियर है कि नहीं? तो इस पे भी सम आएंगे बेटा, ये लोअरिंग। हाँ, व्हाट? x2 इज व्हाट? 2 इज सोल्यूट ना? हाँ, तो सोल्यूट है। हाँ, अरे यार वो मेरा थोड़ा, अरे यार, एक्स सोल्यूट विल बी व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये आता था कि नहीं? हम लोग ने डेरिवेशन किया था कि ना? भूल गए?
अच्छा, इसमें से अभी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस विल डिसअपियर और नॉट, टेल मी. सो व्हाट आंसर विल गेट बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. आई विल शो यू, वेट बेटा, वेयर वी हैव डन दिस, लुक हियर. एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट मैं बता देता. ये रहा बेटा, ये किया था कि नहीं? पीजे देख. फिर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अच्छा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन? दिस इज एंड, दिस इज एलिफेंट, रिमेंबर? सो आई कैन नेग्लेक्ट दिस और नॉट? So look beta, I'll get n. So n solute and solvent. And then what we wrote, tell me. This is weight of solute upon molar mass of solute. Right beta? So this derivation we did na beta. Clear? Okay. चलो बेटा, अभी हम लोग को क्या करने का है? आइडियल नॉन आइडियल. ओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा, आ जाओ. So lowering of vapor pressure is a colligative property. Remember beta, as depends upon the number of moles of which particle? Solute particle. Colligative property we have studied beta. What are colligative property? The property which depends upon number of solute particles. How many colligative property we have to study? Lowering of vapor pressure, boiling point elevation, freezing point depression and osmotic pressure. We have done this. हाँ? चलो बेटा, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बेलो बेटा? इफ मोर मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड होगा तो उसका वेपर प्रेशर विल बी मोर. स्लाइटली वोलेटाइल होगा तो इंटरएक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. अच्छा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. चलो पहला आ गया आइडियल सोल्यूशन. चलो आइडियल सोल्यूशन है, मैं 50 है, हम लोग दोनों आइडियल सोल्यूशन है. 50 पर 50 तो टोटल कितना होगा? 100 होगा कि नहीं? अच्छा बेटा, whenever we talk about solution we mix two component. Are you getting it? This should be first of all visible. अच्छा, अभी मैं A, मतलब A, मैं A है तो मेरे अंदर भी फोर्स होगा कि नहीं? बोलो, मेरे खुद के अंदर फोर्स होगा कि नहीं? ये B है, इसका भी खुद के अंदर फोर्स होगा. इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए ना बेटा. तो हमारे में जो फोर्स ऑफ, मेरे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज गोइंग टू रिमेन वन एंड द सेम. बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर. अभी इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा, ये मिक्स करूंगा तो अभी जो नया फोर्स डेवलप होगा वो भी क्या होगा? सेम ही होगा. ओरिजिनल ऑल्सो सेम, हियर ऑल्सो सेम, एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑल्सो. एंड सच अ सोल्यूशन इज व्हाट? आइडियल. समझा क्या ये हीरो? So both have similar structure, polarity, everything, similar molecular and identical intermolecular forces. So after mixing, what will happen? कोई नया बॉन्ड बना क्या? ओरिजिनल बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ क्या? नहीं ना. अच्छा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होगा ना बेटा. मैं भी 50, ये भी 50, मिक्स करने के बाद क्या होगा बेटा? 100. वॉल्यूम बढ़ा क्या? कम हुआ क्या? ओके. तो ये देख, नो हीट इज लिबरेटेड नॉर एब्सॉर्ब. एग्जांपल बाय हार्ट करना पड़ेगा. मैं तुमको एक ट्रिक भी बताता. सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा. क्या होगा? सिमिलर फंक्शनल ग्रुप. आई विल टेल यू बेटा. अरे बेटा, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, दोनों में बेंजीन है कि नहीं? बोलो बेटा. अगर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, दोनों में फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है ना बेटा? आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी. इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आइडाइड बोथ आर सेम. इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल बोथ आर सेम. सेम फंक्शनल ग्रुप. ट्रिक याद रहेगा. अरे बेटा, कॉमन सेंस है. देख, पहले ये इथेनॉल था बेटा, तो इथेनॉल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिफोर मिक्सिंग, यहाँ पे कौन था? बोलो बेटा, मिथेनॉल था. दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. मिक्सिंग के बाद क्या बनेगा? इथेनॉल और मिथेनॉल का मिक्सचर बनेगा. तो दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा बेटा? सेम. क्लियर है? ओरिजिनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओरिजिनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ओरिजिनल बॉन्डिंग वी आर नॉट ब्रेकिंग बिकॉज इट इज सिमिलर ओनली ना बेटा. एंड नो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. अब बेटा आ जाते हैं. और यार ये क्यों इंटरनेट कनेक्शन? ये सब मैंने बता दिया बेटा आप लोग. ये आइडियल का ग्राफ था. अरे वी डिड दिस ना राइट नाउ ओनली. नॉन आइडियल. ओ, नॉन आइडियल में भी मैं तुमको दो केस बता दिया. हम दोनों थे 50-50, मिक्स करने के बाद 100 आना चाहिए था ना. सब 101 आंसर आया. मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मतलब तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना बेटा. बढ़ रहा है मतलब हमारा ओरिजिनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? स्ट्रॉन्ग था. अब क्या हो रहा है बेटा? वो कम हो रहा है. मतलब मेरा ओरिजिनल फोर्स को आपको ब्रेक करना पड़ा करेगा कि नहीं? तो एंडोथर्मिक और नॉट, राइट? अच्छा, डेल्टा वी इज कमिंग पॉजिटिव. ओके. अब मेरा मिक्सिंग होने के बाद हमारा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना बेटा. तो हम लोग का अभी बॉइलिंग पॉइंट, पहले इंडिविजुअल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, इंडिविजुअल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम. चलो देख, यहाँ पे देखा, बहुत अच्छे से दिया है. देख, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी आफ्टर मिक्सिंग शुड बी वीकर देन ए एंड बी बी अट्रैक्टिव फोर्स. आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके. अच्छा, अभी कैरेक्टरिस्टिक, दे डू नॉट ओबे. डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0. वाई? क्योंकि न्यू बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ. ओरिजिनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था ना.
ओरिजिनल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा। तो एंडोथर्मिक, सो डेल्टा एच इज व्हाट, ग्रेटर डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। ए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी आल्सो मोर ना बेटा। अच्छा, अभी हम दोनों का कंबाइन होने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा वो बेटा क्या होगा, ओरिजिनल से ज्यादा। तो देख बेटा, ओरिजिनल से हमारा जो है वो क्या होगा, बोलो बेटा, ज्यादा होगा ना, रेदर देन हमारा इंडिविजुअली जो था। कॉमन सेंस ना बेटा, पहले हम लोग का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा था, हम लोग आसानी से वेपर बना रहे थे क्या? आफ्टर मिक्सिंग हम लोग आसानी से बनाएंगे ना वेपर्स, अरे गेटिंग विल इजीली फॉर्म वेपर्स। एग्जाम्पल मॉलिक्यूल, उसमें अभी याद रखना, हमेशा एक मॉलिक्यूल है ना अल्कोहल होगा या वाटर होगा। क्यों? आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा देख बेटा, अभी देख यहाँ पे एसीटोन और मिथेनॉल था। ये एसीटोन में क्या होता था, मैं तुमको लॉजिक भी बताता, बुक में नहीं दिया है, खाली वो लोग ने ऐसे ही बोला है। देखिए एसीटोन एसीटोन होता है बेटा। ओके, हेलो डियर, एसीटोन एसीटोन में बेटा नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेंडर वॉल्स। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अभी दूसरा कौन था बोल, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब अल्कोहल होता है, अल्कोहल में बेटा देख आर ओ एच होता है कि नहीं, बोल बेटा, वापिस आर ओ एच होगा कि नहीं? तो ये मेरा बॉन्ड देख ना बेटा, यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिमेंबर, ओवर हेड फोन कॉल, याद आ रहा है ना, हेड, एच एफ एच ओ। तो ये इथेनॉल में ओरिजिनल बॉन्ड क्या था, ज्यादा। जब वो एसीटोन के साथ मिक्स करेगा तो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा क्या, तो ये ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मेरे को एनर्जी देना पड़ा रहेगा कि नहीं, बोलो। क्लियर है? ओके। अच्छा, यहाँ पे अपना जो ओरिजिनल नॉर्मली यहाँ पे आना चाहिए था ना, आइडियल में ये ना आना चाहिए था, यहाँ पे अपना आंसर कहाँ पर आएगा, ऐसा ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा बोलो बेटा? अरे वेपर प्रेशर उनका कम हो गया ना बेटा, राइट? वेपर प्रेशर इंक्रीज है, सर ये क्या, आई मीन टू से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मैंने बोलने में रॉन्ग मिस्टेक कर दिया सर। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया कि नहीं? तन्वी बेटा, जी गेटिंग इट ना? या, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग दैट आल्सो यू आर गेटिंग ना, बिकॉज वाटर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाज देयर, एंड आफ्टर बॉन्डिंग हियर द हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी वीकर। अच्छा, इसमें देख बेटा एग्जांपल देखा, बाय ऐड करना पड़ेगा। वन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, ये मैंने ट्रिक दिया है, देखना। अल्कोहल में था एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड में, एसीटोन में भी होता है बट टू अ लेस एक्सटेंट, बट वाटर एंड देख मिथेनॉल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेटा, वाटर में और ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब बोले सब मिथेनॉल में भी है, लेकिन वाटर में दो एच होता है ना बेटा, इट विल बी मोर स्ट्रांग। अब हम लोग किसका करने वाले, देख देख ऊपर आ गया कि नहीं, बोलो बेटा। चलो, नॉन आइडियल में भी क्या हो, अच्छा एग्जाम में पूछेगा, गिव एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, राइट? तो पॉजिटिव डिविएशन में दिस एग्जांपल यू हैव टू बाय हार्ट, हाँ बेटा, उसका कोई लेकिन मैंने फिर भी तुमको हिंट देता, एक वाटर होगा बेटा। क्लियर? यस ऑब्वियस। अच्छा बेटा, यू टेल मी, initially he was 50 and after mixing our volume is increasing 101, so our force of attraction is decreasing, so vapor pressure automatically increase होगा। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं 50 है ये 50 है, मिक्स करने के बाद कितना आंसर आ रहा है मेरे को, 19। मतलब अब पहला हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे मेरे के बीच में कम होगा, इसके इसके बीच में कम होगा, लेकिन अभी मिक्स होने के बाद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी गेटिंग? तो अच्छा, यहाँ पे अपना जो ग्राफ ऐसा यहाँ पे ऐसा आ रहा था ना, ये नॉर्मल, यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा बोलो बेटा, ऐसा नीचे जाएगा, वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, हम रिकॉर्डिंग पे रखा है ना बेटा, मस्त, वेरी गुड बेटा, ओए वेरी इट इज। हाँ, वी आर डूइंग नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा, टू लिख, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन ए एंड बी बी, बराबर ना बेटा? ओके, अब देख बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, मेरा ओरिजिनल फोर्स क्या था बोलो बेटा, यहाँ पे वीक था, अब मैं इसके साथ नया बॉन्ड बना रहा हूं ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इट विल बी एक्सोथर्मिक, सो डेल्टा एच विल बी व्हाट बेटा, नेगेटिव। ओके, ए वॉल्यूम अभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो डेल्टा वी विल बी ऑल्सो नेगेटिव, और हमारा जो मिक्स होने के बाद हमारा जो वेपर टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, ओरिजिनल से कम। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा मिक्सचर का, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा। एग्जाम्पल देख बेटा, यहाँ पे क्या बोल, एसीटोन एंड एनिलीन, एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन, क्लोरोफॉर्म है। तो इसमें बेटा जनरली अगर आप देखोगे तो ट्रिक क्या है बेटा,
इसमें ना आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा। आई कुड हैव गिवन एग्जांपल ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बेटा इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो ये नाइट्रिक एसिड क्या बना देगा, आयंस। तो और वाटर का H प्लस और नाइट्रिक एसिड का उसमें बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एसिटिक एसिड एंड पायरिन, ओनली पायरिडीन, पायरिडीन बॉन्ड्स आर व्हाट वीक, बट पायरिडीन एंड एसीटोन सामने सामने आ जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हेलो, देख बेटा यहाँ पे देखा ना बेटा, वो वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट ना, नेगेटिव नीचे आ रहा है ना ग्राफ। हेलो, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, टेल मी द लॉजिक। अब बेटा मैं तुमको यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में है। एजोट्रोप, व्हाट इज देयर, एजोट्रोप। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कहाँ पे अभी डिराइव किया था, ये देख रहा है बेटा। नॉन वोलेटाइल के लिए क्या था बोलो बेटा, फॉर नॉन वोलेटाइल वी डिड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर नॉन नॉन, या हेडिंग क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आर यू गेटिंग इट? और दोनों वोलेटाइल रहेगा तो बेटा ये इक्वेशन आता था। आर यू गेटिंग इट? टफ लग रहा है क्या, इजी ना बेटा, गेट इट, कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिकॉज ये थोड़ा ना, इसलिए मैंने ना इसको एंड में रखा, तुम लोग अच्छे से दिमाग में बैठे, और वो एग्जाम्पल बाय हार्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। अच्छा, मैं तुमको कहाँ पे लेके आने का था बेटा, सॉरी। हम्म, वी डिड वोलेटाइल, वोलेटाइल, अभी बेटा मैं तुमको ये सब जाने दो, ये सब नहीं है तुम लोगों को, ये सब ऑल दिस इज नॉट देयर। अरे आइडियल नॉन आइडियल किधर गया? हाँ बेटा ये देखो बेटा, आई हैव स्टार्टेड विद दिस आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन बेटा क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी विल बी जीरो, डेल्टा एच विल बी ऑल्सो, क्लियर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग विल बी वन एंड द सेम। देख मैंने बोला था सिमिलर होना चाहिए बेटा, हेक्सेन हेप्टेन, अल्केन अल्केन है ना बेटा ये। ओके, सेम फंक्शनल ग्रुप, आर यू गेटिंग? नॉन आइडियल में बेटा क्या होगा, डज नॉट ओबे। हाँ डेल्टा भी है मेरे पास भी है बेटा, पानी तेरा ही बॉटल है, क्लियर बेटा। अच्छा अभी इसमें दो पॉजिटिव डिविएशन में देख बढ़ रहा था कि नहीं, मतलब यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग फोर्सेस, आफ्टर मिक्सिंग क्या हो रहा है, ओरिजिनल फोर्स वेयर स्ट्रॉन्ग, आफ्टर मिक्सिंग इट इज बिकमिंग वीक। इसमें एक वर्ड आएगा बेटा, देख यहाँ पे जो भी पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा ना, दे विल गिव यू विच, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, दे विल गिव यू व्हाट बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मिनिमम, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी कम हो जाएगा ना बेटा। अरे बेटा ये पूछेंगे बेटा, विच solution will give you minimum boiling isotopes? The one which shows positive deviation. और पॉजिटिव डिविएशन solution will show which type of isotope? मिनिमम बॉइलिंग। अच्छा इसका रीजन भी मैंने तुमको बताया था ना, देखना ओरिजिनल में अल्कोहल, अल्कोहल मेरे में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, अब बाद में मैंने अल्कोहल को किसके साथ मिक्स किया, देख एसीटोन के साथ, तो अब मेरा जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है बेटा? देख इसमें एग्जांपल आप देख रहे हो बेटा, देख रहे हो, मैंने बोला एक में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा जहां तक होगा, एसीटोन में भी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देख अल्कोहल आया, वाटर आया, देख रहा है ना बेटा, क्लोरोफॉर्म में H और Cl में थोड़ा वीक आ सकता है बेटा। क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल, यू हैव टू रिमेंबर। नेगेटिव डिविएशन में क्या हो जाएगा बेटा, ये देखें। ओके, वहां पे हम लोग को क्या मिलता था, बॉइलिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता था, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बोल बेटा, बढ़ जाएगा ना बेटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, एजोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप इज शोन बाय विच सॉल्यूशन, तन्वी बेटा, नेगेटिव डिविएशन, राइट ना बेटा। ओके, अभी ये एजोट्रोप क्या होता है बेटा, आप बोलिए सर व्हाट इज दिस एजोट्रोप, एजोट्रोप आप बोल रहे हैं कब से, ये देख रहे हैं बेटा, ये आइडियल सोल्यूशन को एजोट्रोप बनाएगा क्या, नॉन आइडियल बनाता है ना बेटा। अभी देख नॉन आइडियल और आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव में क्या होता था, डेल्टा वी इंक्रीजेस, डेल्टा एच इंक्रीजेस, आर यू गेटिंग इट, यार नेगेटिव नेगेटिव आएगा, दे फॉर्म विच, मिनिमम बॉइलिंग आएगा, दे फॉर्म, व्हाट इज दिस एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, ये सुन लो बेटा, a liquid mixture which have definite composition and boiling point like a pure liquid, and both of them will have what beta, same boiling point, तो दोनों को सेपरेट करना क्या हो जाएगा, टफ।
तो देखो उसकी हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, एजोट्रोपिक मिक्सचर और एजोट्रोप। ओके, क्लियर है? टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच आर डेफिनेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो सेम ना बेटा, मतलब मिक्स करने के बाद पहले भी जो इंडिविजुअल का बॉइलिंग पॉइंट सेम था और मिक्स करने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल लिक्विड। क्लियर? ओके, देख एजोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाई? अरे भाई एजोट्रोपिक मिक्सचर क्यों नहीं? सपोज में एजोट्रोपिक मिक्सचर में अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस भी होता है ना तो बहुत कम होता है, सपोज 0.2 का डिफरेंस होगा या 1 डिग्री का होगा। तो बेटा अभी हम लोग बॉईल करेगा तो पहला कौन, जैसा एक 112 है और एक 113 है, तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? 112 का वेपर्स बाहर जाएगा ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन पीछे पीछे 113 भी आ जाएगा कि नहीं? तो दोनों साथ में बाहर आ जाएगा। नॉर्मली डिफरेंस क्या होना चाहिए था? मोर देन 30 डिग्री फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो 100 डिग्री वाला पहले बाहर आ रहा है, इसका 130 है तो पहले 100 डिग्री वाला ही जाएगा, 130 को आने में टाइम लगेगा। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। क्लियर? जैसे अभी तुमको दिया बेटा, देख 95.4% अल्कोहल एंड 4.6% इज स्पिरिट, वो पता है हम लोग को लगता है तो लगाते हैं बेटा, रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है बेटा ये देख, why pure ethyl alcohol cannot be obtained from rectified spirit even by fraction, because they form an एजोट्रोप का नाम क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि मिक्स करने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा तो दोनों को मैं अलग कर पाऊंगा क्या? नहीं। अब बेटा हम लोग को क्या करने का है? न्यूमेरिकल्स। बस आ जाओ यहाँ पे, कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम्हारे? अच्छा एनसीईआरटी कॉर्नर, एक मिनट दिखाने दो मुझे, एनसीईआरटी कॉर्नर क्या है इसमें? एनसीईआरटी कॉर्नर है, बस 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 बेटा, वो मेरा हो जाएगा, हो गया बेटा, चैप्टर खत्म। आई वांटेड टू कीप टेस्ट ऑन दिस सैटरडे बट सैटरडे यू हैव दिस क्लास ना सम फिजिक्स। हाँ देखो बेटा, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो, इट इज ऑल वी हैव डन, परसेंटेज परसेंटेज ये वाला सब किया था, बरोबर है ना? ये डाइल्यूशन करते तो क्या करने का फॉर्मूला? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अच्छा मुझे आज आज जो करा है उसके रिलेटेड सम्स करवाने दो प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग ने किया ना उसके रिलेटेड सम्स कराना है। ये पेज नंबर क्या है बेटा, देख ले एक बार, 102 ना, 102। ओके, ठीक है ना? मैं तुमको ना ये वाला सम करवा, सॉरी बेटा, आई विल कम टू दैट आल्सो, एनसीईआरटी कॉर्नर है, एवरीथिंग एल्स ऑल आई वांटेड टू डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। चलो भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हाट इज गिवन? व्हाट्स योर नेम बेटा? कैस्ट्रो कीगन, कीगन beta, first one. What is written here? Tell me, beta. This is NCERT solved example. That is why I'm giving. What is given here? Tell me. Vapor pressure of, this is chloroform and dichloromethane are given. So they are given vapor pressure. Okay. So which vapor pressure they are given of each of them? The vapor pressure of the solution prepared by mixing this and this gram. So how to find vapor pressure of the mixture? Come on. P total is PA plus PB. PA and PB is given. Okay, but this is in which form? Pure form. So basically this is P0N, this is P0B. Now with the help of this value, can you find the molecular weight of this? You can find molecular weight of this. So can I find the mole fraction or not? Tell me. So chalo beta, first we'll find mole fraction. Look beta, given this is your given mass. Then I calculated molar mass. So now I have calculated mole of this. I calculated mole of this. And can I calculate mole fraction? This divided by this plus this. राइट, एंड दूसरे का ढूंढना मत, 1 माइनस। अभी व्हाट इज पी टोटल? पी टोटल इज व्हाट? पी ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पी ऑफ डाइक्लोरोमीथेन ना बेटा, जो भी था वो। बट इसका फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? P0 ऑफ क्लोरोफॉर्म। आर यू गेटिंग इट? P0 वाज गिवन ना इन द एग्जाम, एंड मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेटेड और नॉट, हो गया। क्लियर है? तो दे डाल दो यहाँ पे, तो टेक टोटल मिल गया कि नहीं? दिस हैज कम इन जेई मेंस 2018 में था ये, पीवाईक्यू में था बेटा, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। ओके, चलो, ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन विच फेज?
वेपर फेज में क्या करेंगे? अरे मोल फ्रैक्शन ना, तो एक्स ए इज इक्वल टू वॉट, उसका जो वेपर प्रेशर अपॉन टोटल। टोटल हम लोग ने ढूंढा कि नहीं, बोलो कितना मिला हम लोग को टोटल? ये देखना बेटा, 347.9। हाँ, मीन्स हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देख हियर वी हैव कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर दोनों का। अभी नाउ वेपर्स में, ये हम लोग ने इसमें कैसे ढूंढा था, ओरिजिनल मिक्स भी किया था। क्या सब ऊपर जाने वाला है क्या? ऊपर कितना गया दोनों का, और उसका फिर हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं बेटा? वेपर फेज। वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज विल बी व्हाट बेटा? टोटल प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन ऊपर वाला, भी ऊपर वाला हिस्सा इतना ही है ना बेटा। अच्छा बेटा, मैं था ये था, पहले मैं मेरा पूरा वेपर बन गया, ये अकेला रूम में था तो ये, लेकिन अभी हम लोग दोनों को मिक्स करेगा तो क्या मैं पूरा अंदर ऊपर जाने वाला हूँ क्या? तो अभी हम लोग ऊपर वाले हिस्से में कितने लोग हैं, हम लोग दैट इज विच फेज बेटा? वेपर फेज। तो वेपर फेज में मैं कितना ऊपर गया अपॉन टोटल वेपर प्रेशर कितना था, वो हम लोग ने ढूंढा ना बेटा, 347। सो लोग, अब मैं ये दिस हाउ मच वेपर प्रेशर वाज पीपीसी, अपने को पार्शियल प्रेशर कितना मिला था इसका? दिस इज नॉट दैट पी जीरो, हाँ बेटा इसको पी जीरो मत लेना, ये अपन ने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। अरे यार कहाँ गया? हाँ ये देख, दिस इज हाउ मच बेटा? 62.4। समझी क्या नहीं? एंड दिस वाज आवर टोटल। आर यू गेटिंग इट? राइट, एक का ढूंढा तो दूसरा ढूंढने का नहीं, वन माइनस कर दे। अरे इनिशियली ये जो दिया है वो लोग ने, वो क्या दिया है बेटा? दिस इज व्हाट बेटा? पी जीरो, वो मत लेना। अरे डोंट टेक दिस वैल्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग दैट वेपर फेज। वेपर फेज में विल टेक विच वन? आफ्टर मिक्सिंग में कभी भी कौन आता है? पार्शियल। तो पी, आई विल टेक पी ए, दैट विल बी व्हाट? पी जीरो ए इंटू एक्स ए। एक्स ए वी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस थिंग, पी जीरो ए वॉज दिस। So now whenever I want only vapor phase, so it will be what? PA upon P total. Got it? चलो बेटा, अभी नेक्स्ट सम में क्या दिया है? देख मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला बेस्ड आता है सम। कहाँ पे गया फॉर्मूला बेस्ड सम? वहां ये रहा बेटा। Look, they are given this. Can you see? Two volatile liquid they are given, right? And what they have told? Calculate vapor pressure of pure A and pure B. How will you do बेटा? प्योर ए होगा तो बी क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, तो प्योर ए के लिए तेरे को यहाँ पे खाली क्या करना पड़ेगा? बी को क्या डाल लेगी बेटा? जीरो। क्लियर है? तो तेरे को मिल जाएगा ना बेटा। तो ये देख बेटा, व्हेन बी इज जीरो, तो प्योर ए का तेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बेटा? पी जीरो ए इज इक्वल टू 120 माइनस, एंड दिस विल बिकम जीरो। तो देख तेरे को आंसर आ गया ना, 120। अच्छा अभी तेरे को अभी क्या चाहिए? प्योर बी चाहिए, तो ए तेरा को क्या होना चाहिए? लेकिन अभी तेरे को ए को जीरो लेना पड़ेगा, तो क्या कर सकती है बोल बेटा? बी की जगह पे तू क्या लिखेगी? 1 - x ए। आर यू गेटिंग? फॉर्मूला विल रिमेन सेम ओनली। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, तो 1 - x ए डाल दे बेटा तेरा, तो पी बी तेरे को मिल जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई डाउट है तो बेटा बोलो हेलो। अब एनसीईआरटी कॉर्नर में फटाक से बता देता चलो। 10 क्या था बेटा? ओ, हाँ ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने का बेटा। अच्छा मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, उसमें सब है ये अभी। आ जाओ, ये रहा सब। क्या लिखा है पढ़ो। कमॉन वियति बेटा, प्योर ए बी दिया है बेटा, प्योर का दे दिया है। एंड find out the composition of the liquid mixture. If the total vapor pressure is how much beta? Also find the composition in which phase? वेपर फेज, वेपर फेज। अभी कंपोजिशन क्या ढूंढना है? लिक्विड मिक्सचर का मतलब लिक्विड मिक्सचर में कौन होगा? कंपोजिशन मींस वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, वी हैव टू कैलकुलेट। तो पी जीरो पी बी इज गिवन एंड पी टोटल इज गिवन। सो बेटा फ्रॉम दिस कैन यू कैलकुलेट दिस और नॉट? पी ए इज इक्वल टू वॉट? एक्स ए पी। ये भी तेरा ये हो जाएगा कि नहीं बोलो? अभी तेरे को इसमें से क्या करने का बेटा? ये एक्स बी की जगह पे यू कैन राइट 1 - x ए और नॉट? टेल मी। तो अच्छा पी टोटल इज पी ए प्लस, अरे वही फॉर्मूला हम लोग ने डाला। सो
यहाँ पे तूने क्या डाला, पीबी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए इंटू पी जीरो बी। वाई हैव डन बोथ एक्स ए फॉर्म, बिकॉज देन ओनली आई कैन गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। अगर दोनों रखता तो एक ए होता और एक क्या होता, बी। आर यू गेटिंग आरुष बेटा? इसलिए मैंने इसको, यदि तेरे को ये सॉल्व करेगा तो तुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, एक्स से मिल जाएगा। और एक्स बी के लिए क्या करने का, 1 माइनस। ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड व्हाई वी डिड दिस? कंपोजिशन मींस आई कैन फाइंड ओनली मोल फ्रैक्शन ना बेटा। अच्छा, अगर तूने नहीं कन्वर्ट करता तो ए और बी दो वेरिएबल आ जाता बेटा। गेटिंग ना जोया बेटा, आर यू गेटिंग इट? हो गया। अभी मोल फ्रैक्शन, अभी तेरे को क्या पूछा फिर बेटा, पेपर फेज में बोला है, तो पेपर फेज में कैसे करेगी बोल बेटा? पी ए अपॉन पी ए प्लस, तो पीए तुम लोग को कहाँ पे, पीए तो वो लोग ने कितना मिला था अपने को, पीए अभी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, पीए कैसे मिला, देखिए मल्टीप्लाई किया 180, और टोटल तो ऑलरेडी दिया है ना, कितना दिया टोटल, नहीं ठीक है 600 दिया है ना टोटल ये। अरे 180 प्लस 420 600 ही मिलेगा ना, तो ये मिल गया, तो इसको 1 माइनस करना है, इजी। ओके, ये क्या था तुम्हारा, ये हम लोग का उससे था बेटा, ये तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर था। अरे यार वो मत डायरेक्ट में बताओ, पी जीरो माइनस पी एज अपॉन वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो प्योर वाटर का वो लोग ने दे दिया है। ओके, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का 60 होता है, पता है ना बेटा, वाटर का कितना होता है 18। आ गया ना बेटा? कर पाओगे? राइट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। सोल्यूशन का ढूंढने का है, ठीक है ना बेटा? तो सोल्यूशन का मतलब आपको पीएच ढूंढने का, पी जीरो दे गिवन, पी जीरो दे गिवन, दिस गिवन, दिस गिवन, दिस गिवन, दिस गिवन, तो पीएस मिल जाएगा, पीएस मिल जाएगा। हो गया ना बेटा? और फिर रिलेटिव लोअरिंग भी आपको मिल जाएगा ना, पी रिलेटिव लोअरिंग बोलेगा तो यू हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस पार्ट। इजी। ओ माय गॉड, ये क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दिस ऑल वी हैव डन। यार है कि नहीं, आए बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग, ये अरे भूल गए क्या? हेलो, ये सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सम्स है। ये 1000 वाला मत लेना फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला दिया था वो वाला, याद आ रहा है, डायरेक्टली कन्वर्ट दैट इनटू सॉल्वेंट। आर यू ऑल गेटिंग इट, बोलो हेलो। ये सब भी हम लोग ने किया हुआ है बेटा। अच्छा, तुम लोगों को स्कूल से मिला क्या वो क्यूबी, कब देंगे? What? You have to pay for that? Oh my God. How much they charge? मेरे पास है लेकिन पुराना वाला है। वही यूज करते हैं। नहीं 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 लेते, अभी तुम्हारे में वो थोड़ा बहुत चेंजेस किया है बेटा। वो 3% तो एक किसी एक को ले लेने का, फिर आपस में सर्कुलेट करने का, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। व्हाई टू पे अननेसेसरली? दिस इज लूटिंग। एंड हम यार फीस चार्जिंग 2.5 लाख, कितना है अभी फीस तुम्हारा? 3 लाख पर ईयर का, और 3000 का चिंदीगिरी दे आर डूइंग। ऑल दिस बेटा वी हैव डन, दिस पी जीरो माइनस पी एस वाले सब में फॉर्मूला सेम ही है बेटा इसमें। और क्या था तुम्हारा, नॉन वोलेटाइल, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द, वो सिमिलर है बेटा ये। अरे आई एम लुकिंग फॉर दिस। हाँ हाँ देख बेटा, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पेयर, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, क्या रहेगा बेटा, दोनों नॉन पोलर है ना बेटा। I2NCCl4, देखिए वाटर वाला में ओरिजिनल में ज्यादा होगा, बाद में कम होगा कि नहीं, मिथाइल में ओरिजिनल में ज्यादा होगा, आफ्टर मिक्सिंग कम होगा कि नहीं, बोलो बेटा। राइट, ओके। अच्छा बेटा, जब दोनों नॉन पोलर होता है तो विच फोर्स इज देयर बेटा, नॉन पोलर होगा तो बेटा, नॉन पोलर वेंडर फोर्स। पोलर दो अभी तुम्हारा तो मतलब, और एक होता है बेटा, एक पोलर एक नॉन पोलर रहेगा, मतलब पोलर पोलर रहेगा तो डाइपोल डाइपोल, दो दो पोल होगा ना बेटा। नॉन पोलर, अच्छा मैं तुमको बता देता भाई, लिख देता हूँ। ओ यहाँ ये वाले क्वेश्चंस है ना, ये खाली मेरे को एक बताने दो बेटा, सुनो ना बेटा। अच्छा सुनो बेटा, ये एन हेक्सेन, हेक्सेन एंड ऑक्टेन बोथ आर नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर होता है तो विच फोर्स आर देयर बेटा, क्वीन वैन डर वाल्स फोर्सेस और लैंडन फोर्सेस। बेटा एक पोलर है बेटा, एक कौन है, पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और एक कौन है तेरा, नॉन पोलर है।
ठीक है ना, नॉन पोलर। अभी नॉन पोलर, ये नेगेटिव क्या करेगा, पोलर के बाजू में अगर कोई नॉन पोलर आएगा तो इसके अंदर ये डाइपोल इंड्यूस करेगा ना, इसका न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके अंदर क्या था, डाइपोल था, इसके अंदर उसने डाइपोल क्या किया, इंड्यूस किया। क्या किया, तो इसमें होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इफ वन इज पोलर एंड वन इज नॉन पोलर देन विच फोर्स विल बी देयर बेटा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बट इफ बोथ आर पोलर देन, तो दोनों में डाइपोल डाइपोल होगा ना, तो डाइपोल डाइपोल। ठीक है। अच्छा, एक होगा बेटा आयन और एक पोलर होगा, तो आयन डाइपोल होगा। क्या होगा, आयन डाइपोल बेटा आयनिक कंपाउंड में होगा। सोडियम क्लोरीन में सोडियम आयन्स है और पानी है कि नहीं, तो सोडियम और इसके बीच में ये क्या डाइपोल, और ये क्या है आयन। ये सबसे स्ट्रांग होता है, आयन डाइपोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। चल बेटा, अभी ये लोग ने ना ऐसा इंट्रैक्शन दिया बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा। किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, सोल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन, नो सॉरी दे हैव टोल्ड इन एन ऑक्टेन। सॉल्वेंट वाटर नहीं बोला, क्या बोला है, एन ऑक्टेन। ये साइक्लोहेक्सेन इज नॉन पोलर, ये भी क्या है बेटा, नॉन पोलर, राइट ना बेटा। अच्छा, लाइक डिजोल्व लाइक बेटा, पता है ना बेटा, ऑर्गेनिक दिस विल डिजोल्व इन दिस। KCl इज व्हाट बेटा, आयोनिक, एंड एन ऑक्टेन इज नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा क्या, अल्कोहल एंड मिथाइल साइनाइड बोथ आर पोलर, और मिथाइल साइनाइड इज लेस पोलर देन अल्कोहल। तो कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा बेटा, मिथाइल साइनाइड विल डिजोल्व मोर एंड मिथेनॉल विल डिजोल्व लेस। ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसका होगा बोलो बेटा, साइक्लोहेक्सेन, फिर मिथाइल साइनाइड, फिर ये, और KCl तो होगा ही नहीं। अच्छा, ये लोग ने क्या बोला, विच इज इनसोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। कौन कौन दिया है, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टॉल्विन में नहीं होता है, फॉर्मिक एसिड में होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल में भी होगा, क्लोरोफॉर्म में, और पेंटेनॉल। तो अभी बेटा हम लोग एक एक करके करते हैं। फिनाइल विल बी व्हाट, पार्शियली सोल्यूबल। अच्छा बेटा, अभी ना इसमें दो चीजें देखने का, एक तो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट, और एक होगा पानी वाला पार्ट। पानी वाला पार्ट है ना, ये डिजोल्व होता है, लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट इज व्हाट, इनसोल्यूबल होता है। ऑर्गेनिक पार्ट इज वाटर रिपेलिंग। फिनॉल में बेटा होगा, बट पोलैरिटी फिनॉल का क्या होता है बेटा, कम होता है, तो इट विल बी सोल्यूबल पार्शियल। टॉल्विन बेटा सोल्यूबल होगा क्या, कुछ है ही नहीं अंदर। टॉल हम एक आई लीव बेटा, टॉल्विन नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा बेटा, टॉल्विन नॉन पोलर। फॉर्मिक एसिड हाईली सोल्यूबल होगा, क्यों, फॉर्मिक एसिड में बेटा दो दो जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी H, और वाटर यहाँ पे भी उसके साथ बेटा क्या हो सकता है, बॉन्ड बनाएगा। टू पॉसिबिलिटीज आते हैं फॉर इट इज हाईली सोल्यूबल, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। इथिलीन ग्लाइकॉल भी बेटा क्या होगा, अल्कोहल है ना, तो हाईली सोल्यूबल। क्लोरोफॉर्म तेरा रहेगा बेटा, क्लोरोफॉर्म क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा वो, अरे क्लोरोफॉर्म ऐसा होता है बेटा, CHCl, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं। फिर क्या बचा, पेंटेनॉल, अल्कोहल है ना बेटा, लेकिन पेंटेनॉल का 5 कार्बन है, तो ऑर्गेनिक वाटर रिपेलिंग ग्रुप इज बिगर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा तुम लोग को, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, ये तुम्हारा है ना पोद्दार का, ये देख लो बेटा। अरे सॉरी, ये ना, ये राउल्स लॉ हम लोग ने किया कि नहीं आज, बोलो बेटा, बोलो ना, डिराइव एक्सप्लेन व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड, व्हाई द gases tend to be less soluble in liquid at temperature is because when you raise the temperature liquid will expand and gas will escape out। ये सब कर दिया, ये सब कर दिया, एनॉक्सिया वेनॉक्सिया वी हैव डन, ऑस्मो ये हाँ वी डिड टुडे। शो द रिलेटिव लोअरिंग वेपर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट व्हेन ओनली सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का आज हम लोग ने किया था ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑल वी हैव डन। हाँ देखिए आज ये करवाया कि नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन, टेल मी हेलो। फिर ये भी पूछेंगे बेटा आपको, देखना अमंग द फॉर आइडेंटिफाई इनसोल्यूबल पार्शियली, अभी जस्ट नाउ एक्सप्लेन और नॉट, टेल मी। Hey, what are the factors responsible for Raoult's law?
राहुल लॉ में क्या होना है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग शुड बी सिमिलर। फिर ये सब बताया था, याद आ रहा है? अरे भाई, रॉ मैंगो श्रिंक क्यों हो जाता है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, राइट बेटा? ऑल दिस वी हैव डन। हाँ देखिए, अभी मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी किसका किसमें होगा, सॉल्वेंट देखने का बेटा। देख, CCl4 and water are immiscible, whereas ethyl alcohol and water are miscible, hydrogen bond. टू लिक्विड एन बी मिक्सिंग प्रोड्यूस अ बॉम्ब। हाँ देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, देखिए ऐसा पूछेगा। द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 19। 10 + 10 कितना? 20 हो गया, तो कम हो गया कि नहीं? कम हो गया मतलब क्या हो गया रहेगा? रिएक्शन कौन सा होगा बोलो बेटा? कम हो गया मतलब और नया बॉन्ड बन रहा है, एक्सोथर्मिक। So what will be there beta? Negative deviation, volume is less, negative, and interaction is more, and the reaction will be what? Exothermic. A and B on mixing produces warm solution. Warm solution मतलब warm solution हुआ बेटा. Warm solution, which type of deviation it will be there बेटा? हाँ, अरे the mixture shows with deviation बेटा. Warm बन गया ना बेटा? Endothermic. The interaction will be which one बेटा? Negative deviation ना बेटा? देख जा बेटा, molecules क्या हो गया ये? The interaction between solute and solvent molecules is what beta? More na beta? Mixing produces a warm solution. कुछ तो गड़बड़ दिया इसमें। एक्सोथर्मिक होता है सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा बेटा? दोनों मिक्स होने पे हीट विल बी रिलीज, तो सोल्यूशन विल बी व्हाट बेटा? एक्सोथर्मिक सोल्यूशन को टच करेंगे तो क्या होगा? हॉट। एंडोथर्मिक होगा तो उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर दिया तो कूल हो जाएगा बेटा। हाँ, एक्सोथर्मिक तुम्हारा क्या होगा? सोल्यूशन में हो रहा है ना बेटा। हाँ, तो लूजेस हीट। नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? एक मिनट मेरे को देखने दो, क्या दिया है? टू लिक्विड ए एंड बी, सॉरी 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 सॉरी, वार्म सोल्यूशन दिया है ना बेटा? तो वार्म कब होगा बेटा? हाँ, व्हेन इट एब्सॉर्ब्स हीट। हाँ, तो एंडोथर्मिक होगा ना वो। द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विल बी व्हाट? नो, बट विद डिविएशन। टाइप डिविएशन मेंशन ही नहीं किया है लोग ने। हाँ, नेगेटिव डिविएशन नहीं, लेकिन बेटा इट शुड बी व्हाट? इट इज पॉजिटिव होना चाहिए था बेटा वो। ठीक है ना बेटा? दिस इज रॉन्ग। हाँ, आंसर रॉन्ग हो गया है। एजोट्रोप मिनिमम ये सब बताया कि नहीं मैंने? बोलो बेटा। और इसके न्यूमेरिकल्स कहां पर है? वी हैव डिस्कस्ड, कवर्ड ऑल द न्यूमेरिकल। आई होप हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बेटा। देखिए, ये भी आया एन हेक्सेन एन ऑक्टेन, विच फोर्स? वैन डर वाल्स। ये दोनों नॉन पोलर था तो इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ये भी रॉन्ग दिया बेटा। कैसे I2 एंड I2 में इंड्यूस डाइपोल कैसे होगा? ये तो तुम्हारा वेंडरवाल्स होगा बेटा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाँ बेटा, देखना तुम्हारा लेटेस्ट में, मेरे को बताना बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आ गया अच्छे से? I want to keep test on this chapter. So when to give test? Next Thursday. ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे नहीं, फिर टेस्ट में सैटरडे को रखता हूँ क्योंकि तुम्हारा छुट्टी रहता है ना इसके लिए। अच्छा, ऐसा रहता है। सो व्हाट? सो यू हैव टू स्टडी दिस। आई एम गिविंग सो मच टाइम। अच्छा, आई put up in the group. Don't worry. Okay.